I welcome all of you today online workshop for coaches and Sepak Takraw players, which is conducted by Sports Authority of India and Sepak Takraw Federation of India with collaboration Asian Sepak Takraw Federation. So I also want to welcome Mr. Boonchai Lorpipat, Secretary General Asian Sepak Takraw Federation and Deputy President International Sepak Takraw Federation. So today he is going to address our closing remarks. So I welcome Mr. Boonchai Lorpipat and request him to deliver his speech. Sir, please. Thanks. Dato Abdul Halim bin Kadeh, the President of the Asian Sepak Takraw Federation, Dr. S.R. Premraj, President Sepak Takraw Federation of India, Mr. Jurjender Singh Dahiya, Secretary General, Sepak Takraw Federation of India, the Directors, Sport Authority of India, instructors, coaches, players, and all workshop attendees. On behalf of the Asian Sepak Takraw Federation and International Sepak Takraw Federation, ISTA, I would like to extend my sincere admiration and congratulations to the Sport Authority of Thai India and Sepak Takraw Federation of India for being brave and initiative in the creation of the online Sepak Takraw workshop for coaches in collaboration with our staff, while in the middle of the COVID lockdown period. More than 800 attendees from India and foreign countries have participated in this online workshop. That's marvelous. That means a lot to the potential growth of Sepak Takraw in India and South Asian countries. It's real challenging to deliver knowledge which needs practice like workshop by online. Of course, because it's more difficult than by teaching in face-to-face. However, you all have done it. This is the last hours of this workshop. I have to thank for the patience and contribution from both teachers and students who make this workshop happening and successful. I hope this online workshop give you an eye-opening and vision on your Sepak Takraw career. For people who want to be players or coaches or even Sepak Takraw management. When lockdown is relaxed or over, please take all the knowledge from this workshop, go to the real practice, go to kick the real Sepak Takraw ball, go for real coaching to gain experience in your Sepak Takraw career. Then this workshop would be really disrupt the Sepak Takraw development in India and South Asian country by bringing Sepak Takraw to a higher growth, a higher popularity at a shorter time than expected. Our staff acknowledge and certify this workshop and will make opportunity open for this development. Our staff will organize many future tournaments waiting for you, waiting for the player, waiting for the coach, waiting for the management. So get practice. May I thank once again for the lecturers, for the students who overwhelmingly participate in this workshop. I wish you safe from COVID-19, be healthy, and be successful in your Sepak Takraw career. Thank you. Thank you, sir, for your closing remarks, and we are very thankful that you have accepted our invitation and you have delivered here a closing remarks. Thank you very much. We are very thankful on the behalf of Sepak Takraw Federation of India as well as on the behalf of Sports Authority of India. So for your valuable time. Thank you very much, sir. Thank you. All the best. Thank you. Very good morning to one and all present here.
and I thank you all for this opportunity to come and give me this moment to share my presentation with you. I first of all welcome on behalf of the entire Sepak Takraw Federation of India, our President of the Indian Federation. Sir, it's a great honor and a great privilege to share this time with you. And we also need to thank you as President and the Secretary General and the rest of the administration of the Sepak Takraw Federation of India to have such an innovative means to have this knowledge sharing, to have this understanding, and to build coaches who are the lifeline of the national team. Thank you very much, sir. And I also would now like to take this opportunity to begin with our presentation today. Our presentation deals today with data analysis and scouting. And if you see the entire presentations that I have been building, it's all about coach development, coach and their ability to have a fantastic opportunity to learn, to evolve, and to be available through not just national courses, but also international courses, by which there is so much of learning, there is so much amount of development in player talent, in training methodology. This is one of the latest areas by which athletes and players are being identified and trained at different times. And today's lecture is very pertinent. It talks about one of the most latest means, which is known as data analytics. Now, why is data analytics so important? We will talk about this in our session today, but first and foremost, yes, the Indian Sepak Takraw Federation, on behalf of the Federation, I would like to thank our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Minister of Youth Affairs and Sport, Shri Kiran Rijiju ji, for this unique opportunity to develop our coaches, which skill the young talent and the players of India through this webinar. So, without much ado, what is data? When we're talking about data analytics, we have to understand what is data. Why is maths the most dreaded subject that people always are so scared about? Most players are scared about mathematics. What is data and maths doing in sport, especially in a sport like Sepak Takraw? Well, data refers to facts and statistics which are collected for reference or analysis, things which are used for the purpose of calculation, quantities, characters, symbols, operations, which are performed on a computer, or through data management, which are stored and transmitted in the form of electronic signals on magnetical, optical data, and mechanical recording. All of this are different forms of data. But to understand that, yes, there are different types of data: structural data, unstructured data, raw data, geographical data, real-time data, natural language data, time series data. As per time lags, what is the data? In 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 hour, 1 year, 1 month, 1 week. How do we interpret data? It's very important. Network data, event data, and linked data. These are the different types of data. How they are being collected in terms of numbers, in terms of words, in terms of measurements, in terms of observations, just are the different forms of data. और जब हम data की बात हम करेंगे, data here is reported, is analyzed, and then graphs are computed by which analysis tools are built up. It helps better decision making. It helps to understand the situation and the circumstances and the different variables in one area. The ultimate reason why we need data is for player performance, player efficiency, and maximizing player potential.
Now, yes, relevance of data in sport. There are two types of data. The first one is in-game data, in which the game data is quantified, physical data of the players, anthropometrical measurements लिए जाते हैं, जैसे height है, जैसे weight है, जैसे different parameters हैं कि कद की लंबाई कितनी है, हाथों की लंबाई कितनी है, ये पता कर पाते हैं कि how much is the length of the foot, how much is the length of the limb, how much is the movement, कितनी flexibility है. मेंटल डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी कितनी है. कल हमारे सेशन में राकेश ने बताया था कि एंजाइटी कितनी है, मोटिवेशन कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेस कितना है. इजी गेम है तो फिर स्ट्रेस शायद कम हो सकता है, टफ गेम है तो स्ट्रेस ज्यादा है, मगर कम स्ट्रेस होना भी प्लेयर के लिए हानिकारक है, उसके परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा. तो ऑप्टिमम स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए मेंटल डेटा लेना बहुत जरूरी है. गोल्स, एम्बिशंस और रियल टाइम गोल सेटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्री गेम, ड्यूरिंग गेम एंड पोस्ट गेम डेटा जो प्लेयर का परफॉर्मेंस है उसको आप मेजर करते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं. जैसे कि आपका स्ट्रेंथ है, जैसे आपका स्टैमिना या एंड्योरेंस है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल स्किल, जो आपका स्किल एग्जीक्यूट करना है, चाहे आप टाइकॉन्ग हैं तो आपकी सर्विस कैसी है, लूपिंग सर्व है, कूड़ा सर्व है, सीला सर्व है, हॉर्स किक सर्व है, ये सब के सब आपके टेक्निकल स्किल्स के अंदर आते हैं. कौन सा स्किल कब यूज करना है और किस एक्यूरेसी से आप उस स्किल को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, दैट इज टेक्निकल स्किल. एंड इफ यू लुक एट टैक्टिकल एबिलिटी, कब आपने अटैक करना है, कहाँ पे काउंटर अटैक करना है, कहाँ पे डिफेंस करना है, कहाँ पर आपकी टीम फॉर्मेशन और टीम शेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टैक्टिकल स्किल के बारे में बात कर रहे हैं. अब चलते हैं कि ये है गेम की बातें. अब गेम के बाहर एक टीम का डेटा क्या हो सकता है, जो सैलरीज है कोचेस के, सपोर्ट स्टाफ के, ट्रेनिंग वेन्यू के, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितने हैं, उसकी एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके रेंट कितना है, क्या आप प्लेयर्स के लिए पूरे साल का जो आपका बजट है वो कितना है, आपके स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा आ रहा है, कितना वो बजट को बैलेंस कर पा रहा है. अगर आप टिकटेड गेम्स हैं तो आप क्या टिकट को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, आपकी प्राइसिंग के डिटेल्स कैसे हैं, फैंस को कैसे एंगेज करते हैं, मार्केटिंग का जो आपका प्रोग्राम है कितनी पॉपुलर है आपका गेम, उसको आप मोनेटाइज कैसे कर रहे हैं, पैसे को में कैसे उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं. ये है नॉन गेम डेटा जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना क्लब्स या टीम्स या स्पोर्ट या कम्युनिटी बिल्ड स्पोर्ट आगे बढ़ नहीं पाएगा. वो पेट्रनेज के सिवाय वो आगे बढ़ नहीं पाएगा. एनालिटिक्स, हमने डेटा देख लिया किस किस तरीके के डेटाज होते हैं. अब एनालिटिक्स, लेट्स लुक एट व्हाट एनालिटिक्स इज. एनालिटिक्स इज द डिस्कवरी, इज द इंटरप्रिटेशन of meaningful data, and after this is discovered, this is interpreted, how you are communicating to different stakeholders. क्या आप अपने मैनेजमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या अपने प्लेयर्स के साथ, असिस्टेंट कोचेस के साथ, क्या आपके सपोर्ट स्टाफ के साथ ये इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ताकि उनको इस डेटा का फायदा हो. क्योंकि कोच अपने दिमाग में ये डेटा रखेगा और उसको आगे यूज नहीं कर पाएगा, उस डेटा का कोई फायदा नहीं है, उस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है, until and unless the coach is able to interpret data. Discover data is data mining, right? And interpretation is analysis, and then communication is how this data is being used to the benefit of the team and player performance. Yes, analysis can be understood as the connection between data and effective decision within an organization. What is a good decision, what is a better decision, and what is the best decision possible. क्या इससे बेटर कोई डिसीजन हो सकता था? ये ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए डेटा की बहुत जरूरी है. आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके हैं जिसमें स्किल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं. कौन सा स्किल बेटर है, कौन सा स्किल बेस्ट है, और शायद वो स्किल बेस्ट होगा पर क्या वो टाइम राइट था जिसमें आपने वो स्किल एग्जीक्यूट किया. क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है, स्पोर्ट्स is a dynamic situation which multiple options are available to the player. It is about the choices that the player takes. अब मैंने ये वाला स्किल यूज किया, अब मैंने इंस्टेप यूज किया, यहाँ मैं खड़ा हो पाया,
विद बॉल मेरी मूवमेंट क्या है, विदाउट बॉल जब मेरी टीम के पास या मेरे पास बॉल नहीं है तो मैं अपने आप को कहाँ खड़ा रख रहा हूँ, क्या मैं अपने प्लेयर को असिस्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं ऑपोजिट टीम के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ, ये सब डेटा इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ताकि अप्लाइंग डेटा विल गिव द बेस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑप्शन। अगर हम आगे चले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल डेटा क्या हुआ, what has happened is known as descriptive analysis. What is happening is known as diagnostic analysis. What is likely to happen, आगे क्या हो सकता है, डेटा ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, ये है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो ये हमारे पास 4 तरीके के एनालिसिस हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। Descriptive is what has happened in the past. Diagnostic is what is happening now. Interpretation of descriptive data. Predictive data is what will happen in the future. In current game situation, the coaches need to have data to plan their strategy, to plan how their players are going to play. It is very, very important. So they need descriptive analysis. Diagnostic analysis is feedback or interpretation, how well you are able to execute your plans which you have made on the basis of your analysis. Let's look at descriptive analysis in detail. Like I told you, descriptive analysis क्या है, क्या हुआ है, क्या हो चुका है, आपके अतीत के बेस पे जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो है डिस्क्रिप्टिव डेटा। उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। डेटा रियल टाइम डेटा है या हिस्टोरिकल डेटा है। फॉर एग्जांपल, ये डेटा कोई चेंज नहीं कर सकता कि आपका कोर्ट कितना लंबा है, आपका सर्विंग सर्कल कितना एरिया में है, वो 2.45 मीटर्स के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। हिस्टोरिकल एस्टैब्लिश डेटा है जिसके बल पे आप अपना परफॉर्मेंस का एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या हाइट कितनी है नेट की, ठीक है, कितना दूर है आपका बेस लाइन, आपका अटैक लाइन, बहुत ये सब चीजें हैं हिस्टोरिकल डेटा जिसके बेस पे आप अपने प्लानिंग को स्टेबल करते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी प्लानिंग को स्टेबलाइज करते हैं। रीजंस बिहाइंड प्रेशियस सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पास्ट, हमने पहले ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिला, हमने ऐसा पिछले मैचेस में क्या किया था, पिछले टूर्नामेंट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हम अपने प्लेयर से अपना मैक्सिमम सक्सेस अचीव कर पाए थे, या जीते थे या हारे थे। कहते हैं अपनी हार हमारी बेस्ट सीख होती है, मगर अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करें, अगर आप उसको मेजर ना करें, क्वांटिफाई ना करें, तो वो आप फिर दोहराएंगे वही गलतियों को। बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी गलतियों से ना सीखे, और अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े। तो डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को माइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न आपके प्लेयर का अंडर प्रेशर क्या है, जब हम हार रहे हैं हमारा प्लेयर कैसा था, तो जब हम जीत रहे हैं हमारा प्लेयर्स का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया, 4 पॉइंट जीतने के बाद एकदम से 4-5 पॉइंट हार जाए। ये अटेंशन स्पैन को क्वांटिफाई करता है, ये दर्शाता है कि आपके प्लेयर्स का साइकी क्या है। तो इसके बेस पर पॉइंट टू पॉइंट, गेम टू गेम, सेट टू सेट, आप जब अपने प्लेयर्स को स्टडी करते हो, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाए कि आपका प्लेयर किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किस ऑप्शंस को वो एक्सप्लॉइट कर पाता है। ये आकाश है, कहते हैं he's one of the best smashers that the country has got, और उसके सीख से, उसके परफॉर्मेंस से दूसरे नए प्लेयर्स उससे क्या सीख सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, जो ये सिंपल एक डेटा है, इंडिया टू नेपाल 0, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा ये आंकड़े देखकर आप बता सकते हैं कि क्या आपकी टीम जीती है, क्या आप हारी है। वेरी सिंपल वे ऑफ पुटिंग डिस्क्रिप्टिव डेटा in the form of analysis for people to understand very easily. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The simplest class of analytics is one where big complex data को आप simple meaningful nuggets के information की तरह से आप उनको
इंटरप्रेट कर पाए। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, ये प्लेयर पोजीशंस, अब जब प्लेयर्स आते हैं, ये आकाश यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारा निकाय है, ये यहाँ पर थॉकचॉम है, ये यहाँ पर दीपक है, ये बताना बहुत जरूरी है ताकि प्लेयर दिमाग में अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि ये मेरी पोजीशन है। ओपोनेंट पोजीशंस क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपोनेंट्स जो पीली जर्सी में है, फार कोर्ट पर है, उनकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इतनी देर में प्लेयर जो है, जो स्मैश करने वाला है या जो सेट करने वाला है, उसकी पीठ जरूर है ओपोनेंट की ओर, तो क्या वो देख पा रहा है, तो पेरिफेरल विजन उसका कितना है। कॉल्स देने पड़ेंगे, क्या वो कॉल उसका सपोर्टिंग प्लेयर दे सकता है कि राइट पे बनाना है, लेफ्ट पे बनाना है, सेंटर पे बनाना है, ये सब डेटा माइनिंग है। और फाइनल, ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एक इंटरप्रिटेशन जो कमर्शियल वे में आगे दिया गया है। देखिए कि है कि कितने गेम खेले हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, तीनों टीमों ने दो दो मैच खेले हैं, जिसमें से इंडोनेशिया 2 गेम जीता है, फिलीपींस 1 गेम जीता है, सिंगापुर 1 भी गेम नहीं जीत पाया है। आपके पॉइंट टैली है फाइनल, जहाँ पे इंडोनेशिया टेबल टॉप कर रहा है ग्रुप बी के अंदर, और फिलीपींस सेकंड पोजीशन पर है पायदान के अंदर, इस पूल के अंदर। तो अगर एक टीम प्रोग्रेस कर रहा है तो सिर्फ इंडोनेशिया प्रोग्रेस कर रहा है, अगर 2 टीम्स प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इंडोनेशिया और फिलीपींस प्रूव कर रहा है कि वो आगे प्रबल दावेदार हैं। और अगर कोई लोग सोचें कि भैया सिंगापुर क्यों नहीं पहुंचा, तो ये आंकड़े बताते हैं, दिस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस tells you why Singapore could not qualify to go through, because they played 2 games and lost both of them. Okay, let's move over now to the next form of analysis, जो है diagnostic analysis. Why did it happen? मगर ये शुरू करने से पहले हमें ये जरूर जानना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। अब देखिए, ये सर्विस करते वक्त आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि ये मेरे पास 3 प्लेयर हैं, मैं सर्विस कहाँ करूं, वीकेंड स्पेस पे करूं, साइडलाइंस पे करूं, या बॉडी सर्व करूं, जहां पे उनके पांव से ऊपर धड़ के अंदर अगर मैं सर्विस करूं तो बहुत मुश्किल है मेरे ओपोनेंट को कंट्रोल करके वापस रिसीव करना। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए मैप्ड डेटा, जो आपने डिस्क्रिप्टिव डेटा में कलेक्ट किया है, डायग्नोस्टिकली उसको अंडरस्टैंड किया है, एनालाइज किया है, लाइव मैच डेटा और एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। कितनी जगह खाली है मेरे सर्वर को, जब मेरे को हाई सर्व करना है, अगर मेरे प्लेयर्स बहुत पीछे हैं तो क्या मेरे को फेक करके ड्रॉप सर्व करने की जरूरत है, ये डेटा भी उसके पास जाना है, वो उसकी डायग्नोसिस है, वो स्पेस को जज करके अपना इंटरप्रिटेशन, अपना डिसीजन बना रहा है। ये आप देख रहे हैं कि उसने 3 प्लेयर सामने ओपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो अपनी डिसीजन मेकिंग के हिसाब से अपने स्किल को एग्जीक्यूट करेगा। Partnership between players, point-to-point analysis. The organization or the company which is looking at data analytics will look at front-end analysis, player profiling, data management services, and of course, players को अगर आपने engage करना है, प्लेयर बहुत स्मार्ट हो गया है आज की डेट में, एक फैन उससे ज्यादा स्मार्ट हो गया है, वो चाहता है कि मेरे को हर टाइम अपने प्लेयर के बारे में पता रहे, कोच के दिमाग के अंदर घुसे, कोच क्या सोच रहा है, डिसीजन क्यों लिया गया। तो प्लेयर्स को ऑन द गेम भी एंगेज करने के लिए कि मेरा प्लेयर आज इस फॉर्म में है, आज टॉप फॉर्म में है, ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है, मगर ये याद कीजिए प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मेजर, एक गेस है कि हर आंकड़े इस प्रोबेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन व्हिच कैन बी टेकन इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। आप यहां देखिए, ये हैं जिस तरीके से डिफरेंट प्लेयर्स को, एक नया गेम, एक एंड्रॉइड गेम अब मार्केट में आ गया है, अगर आप जाने तो रोल बॉल जिसको कहते हैं, जिसमें अलग अलग टीम्स को मेजर किया है। और वो जब मेजर किया है तो कैसे मेजर किया है, देखिए ये आपके पास टीम मलेशिया है जिसमें उनकी ताकत को 68 आउट ऑफ 100 के मार्क्स दिए गए हैं, एजिलिटी को 68 आउट ऑफ 100, और इंटेलिजेंस में वो बहुत हाई हैं, 91 आउट ऑफ 100। इंटेलिजेंस का मतलब ये है, जब वो कंपेयर करें फिलीपींस के साथ, ये 2 स्क्रीन्स आपके पास हैं और नीचे मैंने सिंगापुर भी डाल दिया है। अगर आप देखिए, अब आप तीनों टीमों को एनालाइज कीजिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपना डेटा माइनिंग भी इस तरीके से करें, एक कोचेस के तरीके से, कि मैं किस टीम के साथ खेल रहा हूँ, उनकी ताकत क्या है। अब देखिए स्ट्रेंथ में बेशक जो मलेशिया की टीम है वो 68 है और फिलीपींस की टीम सिर्फ 60 है। और जब जहां हम बात करें सिंगापुर की टीम है, वो सिंगापुर करीब 68 बराबर चल रहा है। वो जहां तक मलेशिया की बात करें एजिलिटी के अंदर अगर हम बात करें, सिंगापुर की टीम सिर्फ 58 है, मलेशिया की टीम है जो बहुत आगे है 68 पर। और खासतौर के फिलीपींस की भी बात करें तो वो भी उनके साथ फाइट कर रहे हैं। बट डिसीजन जो सेपरेट कर रहा है इन तीनों टीमों को इज द प्लेयर्स इंटेलिजेंस, इज द प्लेयर्स एबिलिटी टू अडेप्ट, is the players to create variations, is the players ability to not be predictable. वहां पर इंटेलिजेंस कोशेंट में अगर आप देखें तो the Malaysian team is at 91, the Philippines team is at 85 and the Singapore team is at 73. तो आप अपने opponents को इस तरीके से डेटास के तरीके पे आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि मैं इनके साथ क्या रणनीति रखूंगा, मैं इनके साथ कैसे प्रिपेयर करूंगा। और फिर आप इसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर होगा कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग गेम। मैंने उनके प्लेयर्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, उनकी स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, अब क्या होगा, दिस हेल्प्स सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। क्या ये मैच जीत सकता हूँ, क्या मेरे को फर्स्ट सेट में जीत, प्रेशर डालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये टीम प्रेशर में आ जाए ओपोनेंट टीम, तो क्या पता ये टीम दबाव में आके अपने गेम प्लान से हट सकती है। मेन काम ये है एक कोच का कि रणनीति ऐसी बनाए, एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए, टैक्टिक्स ऐसे बजाए कि सामने वालों का गेम प्लान डिस्टर्ब हो जाए, राइट। फोरकास्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेडिक्टिव एनालिसिस हेल्प्स यू फोरकास्ट और एंटिसिपेट what is going to happen in the future game situations, opponent behavior, personal player के behaviors, you know, fans sentiments कैसे हैं, क्या मेरे fans, क्या मेरी support team, क्या मेरा school जो मैच देखने आ रहा है एक्सपेक्ट करता है कि मैं जीतूंगा, क्या मेरे प्लेयर सोच रहे हैं कि ये मैच हम हार जाएंगे, क्या मेरे प्लेयर सोच रहे हैं कि मेन प्लेयर नहीं खेल रहा है तो मैं आऊं या ना आऊं, मेरा क्राउड प्लेयर खेल रहा है या नहीं, मेरा फैन सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, कि वो आएंगे फिर डिसाइड करेंगे। क्या पता उन्हें प्लेयर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्या पता उन्हें टूर्नामेंट के बारे में पता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं आपके प्लेयर्स को एंगेज करने का। इसके बेसिस पे आपके स्पॉन्सरशिप्स, आपके पार्टनर्स, आपके पेट्रन्स बहुत ज्यादा या बहुत कम या न्यूट्रल रहते हैं। ये देखिए कोई भी इंडिविजुअल 100% या कोई भी एनालिटिकल इक्वेशन आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता विद एक्यूरेसी, वो सिर्फ फोरकास्ट कर रहे हैं। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस से कि ये हो सकता है। बस सामने वाला कोच अगर बहुत शातिर है, अगर बहुत स्मार्ट है, अगर बहुत मेच्योर प्लेयर है, हाई परफॉर्मेंस प्लेयर है, एक बहुत एलीट लेवल का प्लेयर है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है ओपोनेंट के हिसाब से। So this is how players and coaches can use data to predict situations, because 100% कोई भी prediction accurate नहीं हो सकता है, मगर डेटा के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्लेयर को पिछले साल में चोट लगी हुई है, पिछले मैच में वो लिम्प कर रहा था, तो उसके कौन से जोन पे मेरे को अटैक करना है। लास्ट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये है सॉल्यूशंस। ये मैचेस खत्म हो गए हैं जो आप यहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये मैच खत्म होने के बाद जब आप सोचते हैं वो है। या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तब ये भी हो सकता है, और जो आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस तब भी हो सकता है कि पहला गेम खत्म हो गया है, नेक्स्ट गेम में क्या हो सकता है। 2 गेम्स हो गए हैं, पहला गेम मैं जीता हूँ, दूसरा गेम दूसरा जीता है, थर्ड जो डू एंड डाई है वहां पे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, प्लेयर्स ओपोनेंट्स कितने थक गए हैं, ये बहुत जरूरी है। दिस इज अबाउट सॉल्यूशंस, हाउ टू यूज एनालिसिस एंड डेटा टू डिटरमिन सॉल्यूशंस। मेरे प्लेयर को कैसे मैं फीडबैक दूं ताकि हमारी टीम जीत पाए। ऑप्टिमाइजेशन इज अ की वर्ड। ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स अचीव बेस्ट रिजल्ट्स। ऑप्टिमाइजेशन मतलब प्लेयर, कोचेस, एनवायरनमेंट, हर एक का लेवल ऑफ थिंकिंग एट कंट्रोल है।
हमने पहले बात की थी स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो है एक परसीव्ड एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस है जो हमारा बैलेंस को खराब करता है। अगर हमारे में एबिलिटी है कि हम स्ट्रेस के को झेल पाए, स्ट्रेस में काबू कर पाए, तो स्टेज की वजह से ऊपर बढ़ रही है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हमारी परफॉर्मेंस स्ट्रेस से हल्का पड़ रहा है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट आवर परफॉर्मेंस विल गो डाउन। वो फाइट में हो जाएगा, प्लेयर फाइट ही कर रहा है, जूझ ही रहा है अपने ऑपोजिशन के खिलाफ, सिचुएशन के खिलाफ, कोच के डिमांड्स के खिलाफ। ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपके प्लेयर्स, आपके सब्स्टिट्यूट बेंच, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर फेडरेशन, योर स्टेट एसोसिएशन, योर नेशनल फेडरेशन, योर इंटरनेशनल फेडरेशन, उनके साथ आप सिंक में हो कि सर ये मैच तो हम जीतने वाले हैं। स्पॉन्सर्स को आप बता रहे हैं सर ये मैच तो आप जरूर आइए, जरूर देखिए, ये मैच तो जिस टीम पे आपने इतना पैसा लगाया है, इतना आपने सपोर्ट किया है, आज टीम की परफॉर्मेंस देखिए। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर को बता दो आज बेटा तुम अपने 100% पे नहीं खेले हो। कई बार होते हैं प्लेयर्स अपने 100% से बियॉन्ड खेल जाते हैं। ये होता है तब जब आपका फीडबैक, कोच का फीडबैक, सपोर्ट स्टाफ का फीडबैक प्लेयर को हेल्प करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अप कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम डेटा। कोई हाइपोथेटिक गेसवर्क नहीं है, बस डेटा के ऊपर है जिसकी वजह से टीम जीत सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का जो है गैम्बलिंग के अंदर, सट्टेबाजी के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का शुरू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि वो डेटा चाहते थे कौन सा घोड़ा जीतता है, जहां तक रेस हॉर्सेस होते थे, कौन सा प्लेयर है जो आज जीत सकता है, कई मैचेस के अंदर कितने स्मैश लगेंगे, कितने डिफेंसेस होंगे, कौन मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये सब समझना बहुत जरूरी है जब वो बंदा अपना पैसे लगाता है सट्टेबाजी के अंदर। वो देखते हैं, अब देखिए आज की डेट में प्लेयर इंटरप्रिटेशन, प्लेयर परफॉर्मेंस की देखिए सर्व विनर्स, मलेशिया और थाईलैंड के बीच में ये दो आंकड़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनर्स जो हैं सर्विस के थ्रू, मलेशिया ने 11 पॉइंट जीते थे, ऑन द कॉन्ट्री सिर्फ 5 पॉइंट जीत पाई थी थाईलैंड। सर्व परसेंटेज 82% है, सर्विस रेट इन टर्म्स ऑफ दैट। स्पाइक विनर्स मतलब स्मैशेस कितने मार पाए थे, मलेशिया के प्लेयर 11 स्मैशेस मार सकते हैं, ताकि उनका इन गेम मैच विनिंग परसेंटेज कितना हाई है। स्पाइक रेट परसेंटेज 92 to 84, मलेशिया के आंकड़े जरूर सॉलिड हैं। और ब्लॉक्स इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, दूसरों के स्मैशेस को काउंटर करने के लिए भी मलेशिया की एबिलिटी बेस्ट है। इसके बेस पर गैम्बलर्स इस एनालिसिस को यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग कि कौन जीतेगा और अपने बेट्स को अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। इंडिया में जरूर बेटिंग इज नॉट लीगल, बट बेटिंग होता जरूर है, एक जरूर है। ये एक रियलिटी है जो हमारे कोचेस को, हमारे प्लेयर्स को जानना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा उसका ऑरा होगा, प्लेयर, एक स्टार प्लेयर डिटरमिन करता है कि कितने आंकड़े उसकी तरफ हैं, कितने आंकड़े उसके अगेंस्ट हैं। ये जो बैलेंस है कि मेरे स्ट्रेंथ्स मेरे वीकनेसेस से बहुत ज्यादा है, तो वो एक स्टार प्लेयर बनता है। डेटा एनालिटिक्स इसको भी, साइबर क्राइम को भी यूज करता है, साइबर क्राइम एंड डेटा एनालिटिक्स को यूज करता है। पुलिस या जो गेम मॉनिटरिंग एथिक्स कमिटी है स्पोर्ट का, वो भी डेटा एनालिटिक्स को यूज करता है कि ये जांचने के लिए, काफी बार आप देख सकते हैं क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के अंदर जहां पे ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, बॉल टैंपरिंग, ये पकड़ा जाता है डेटा एनालिटिक्स की तरफ कि आपका प्लेयर जो है हाई परफॉर्मेंस, एकदम से वो बिल्कुल कोई कारण से वो बिल्कुल कम या बिल्कुल ऐसे एकदम से वाइड देने लग गया, एकदम से नो बॉल्स देने लग गया, जो बिल्कुल डेटा से और उसकी प्रेडिक्टिव लेवल्स के बिल्कुल अनुरूप है। यू नो, व्हेन प्लेयर्स स्टार्ट परफॉर्मिंग नॉट एज पर their usual form, without any reason, without any external influence or internal influence, if the player starts to create unforced errors, right?
एक होता है जो प्रेशर के अंदर आके ओपोनेंट आपसे गलतियां करवाती है, उसको कहते हैं फोर्स्ड एरर्स। एक होता है अनफोर्स्ड एरर्स, जो आपकी खुद कोई रीजन ही नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं मगर शायद ऐसा ही गलतियां की हैं जिनका कोई रीजन ही नहीं है। अगर ये अनफोर्स्ड एरर्स का नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो पुलिस, साइबर क्राइम या एथिक्स कमिटी ये डाउट कर सकती है कि क्या आप मैच फिक्सिंग में शामिल हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स, ताकि गेम्स का जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है उसको वो बरकरार रखे। किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स प्लेयर्स में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, ये देखिए। ये हमने एक डेटा एनालिटिक्स के लिए ऑप्शंस रखे हैं। ताइकॉन्ग रेडी है जो बॉल सप्लाई करने वाला है, वो अपनी एरिया में तैयार बैठा है और सामने के 3 प्लेयर्स भी तैयार हैं। ये सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां तक इस हाइट पे आएगा तो वो डिपिंग सर्व आएगी। ऑप्शंस क्या है? नंबर 1, ऑप्शन 2, अगर आप देखें वाइड साइड पे दोनों साइड्स जो है टच लाइन के साथ, नंबर 1 अगर आप स्पीड पे मारे प्लेयर्स को रिएक्ट करने में दिक्कत रहती है। खासतौर की उनके जजमेंट के साथ भी बहुत जरूरी है कि वो बॉल बाहर जा रही है या अंदर जा रही है, नेट के साथ जो कहते हैं कोनीय सर्व, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो मार पाएंगे? ये लाइंस हैं जो ऑप्शंस प्लेयर्स को समझने में, सर्वर को समझने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलीट्स को ट्रेन करने में, गेम प्ले में समझने के लिए कौन सा घुटना बेंट है। घुटना जो बेंट होता है, यूजुअली कहते हैं कि उस जगह का, उस पांव को हिलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस पर वेट जरूर होता है। स्काउट्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा प्लेयर हाई परफॉर्मर है, कौन सा प्लेयर ऐसे ही खेलता है। पिछले एक सेशन में मेरे से पूछा गया था कि कई प्लेयर्स वैसे होते हैं जो प्रैक्टिस में अच्छा खेलते हैं और मैचेस या टूर्नामेंट्स में वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। जब तक आप उन्हें रियल टाइम डेटा और उनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जब तक आप उसको बिल्ड नहीं करोगे तो प्लेयर्स नहीं कर पाएंगे अपने आप को एडजस्ट मैच सिचुएशंस के प्रेशर के हिसाब से, और जो इजी टाइम है प्रैक्टिस के अंदर। फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा दे सकते हैं, जैसे ऐसा स्क्रीन पे जब पहुंचता है तो प्लेयर एंगेजमेंट बहुत जरूर हो जाता है, बढ़िया, कि वो अंडरस्टैंड कर पाए। ये फिर से देखिए, ये फ्रॉम दी नियर साइड है, जब प्लेयर्स आपको फेस कर रहे हैं। बॉडी स्मैश, बॉडी पे आप अगर आप सर्विस देंगे तो क्या रहेगा, गैप्स में सर्विस करेंगे तो कैसा रहेगा, अगर आप पीछे दूर अगर आप सर्विस करें तो क्या करेगा। अगर प्लेयर देखिए सर्विस लाइन से पीछे जो सेंट्रल प्लेयर है, जो मेन डिफेंस में है, उससे और नेट के बीच में, नेट के जितने करीब से मैं लूपिंग सर्व डाल पाऊं स्पिन के साथ या स्विंग के साथ, वो कितना इफेक्टिव रहेगा। मेरा स्टैटिस्टिक्स है जिसके दम पे मैं अपना परसेप्शन रखता हूँ कि क्या मैं अटैक करूँ, क्या मैं डिफेंस करूँ, कितना कोऑर्डिनेटिव अप्रोच है मेरी टीम के अंदर, मेरी रणनीति कितनी है, मेरी बाकी टीम प्लेयर्स मेरे पास कितना मेरे साथ तालमेल मिला सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कितना है, टैक्टिकल एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब के सब क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ प्लेयर को देना बहुत जरूरी है। ये लास्ट हमारा समरी है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये हैं टूल्स जो आपके कोचेस के लिए सबसे अहम है, ये कि इंस्ट्रक्शंस दे पाए, सही इंस्ट्रक्शन सही टाइम पे पहुंच पाए प्लेयर के पास, ताकि वो जब गेम में हो वो डिसीजन जो सबसे बेस्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो ले पाए। दूसरा, हर गेम के बाद फीडबैक कि आपने पिछला गेम कैसा खेला है, अगला गेम कैसा खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच खत्म होने के बाद जरूर हम सब खेलते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जीत पाए। वी ऑल प्ले टू विन, यस, विनिंग एंड लूजिंग वी हैव टू नो हाउ टू टेक इन आवर स्ट्राइड, दैट्स हाउ वी इवॉल्व एज प्लेयर्स। But when we want, the first and foremost option is that we have to play our best and we have to play, and if we can win, we must win. और सबसे चीज क्या है, एक टीम, एक यूनिट, कोई एक प्लेयर ताइकॉन्ग नहीं जीत सकता है इंडिविजुअली। जो आपका सर, जो आपका स्मैशर है, वो अकेला नहीं जीत सकता है, कोच अकेला नहीं जीत सकता है। आप जीत सकते हो एक टीम बनके। इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या क्या आता है, जो मेरे को तैयार करना है अपने मैच से पहले, वो है मेरे प्लेयर्स का डेटा, वेन्यू कैसा है,
ओपन है, क्लोज्ड है, क्या मेरे पास एनवायरनमेंट कैसा है, क्या गर्मी रहेगी, क्या एयर कंडीशन है, क्या ठंड में खेलने वाले हैं मेरे प्लेयर, वहाँ का क्या है प्रेशर कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ पे क्या बारिश हुई है, ये सब ओपोनेंट मेरे साथ कैसा है, क्या वो लास्ट टाइम का चैंपियन है या नहीं, मेरे ऑफिशियल्स कैसे हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ऑफिशियल वो है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, हल्का सा भी टेम्पर और अगर वो प्रोटेस्ट करे प्लेयर तो क्या वो वार्निंग देगा, ऐसे हमारे प्लेयर्स को बताना बहुत जरूरी है। रियल टाइम डेटा एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन कोचेस जब तक देंगे तो टैक्टिकल अप्रोच आपका एंड थ्रेट्स, क्या मेरी टीम की स्ट्रेंथ है, क्या मेरे ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ है, क्या मेरी ओपोनेंट्स की वीकनेस है, क्या मेरी टीम की वीकनेस है, ये बैलेंस हो पा रहे हैं या नहीं, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें, मेरे प्लेयर्स के स्ट्रेंथ को कैसे मैक्सिमाइज कर पाए, ऑप्टिमाइजेशन। सब के सब प्लेयर्स जो हैं वो फ्लाइट मोड में आ जाए, स्ट्रेस के ऊपर। फाइट मोड में अगर आए तो फिर स्ट्रेस से नीचे ही रह जाएंगे, जीतना बहुत मुश्किल रहेगा, प्रेशर के अंदर ही दब जाएगा। हमारे गोल्स और हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या रियल हैं या नहीं, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्लेयर्स का स्किल एग्जीक्यूशन कैसा है, प्लेयर्स का चॉइस ऑफ स्किल सही था या नहीं, जहां स्मैश मारा वहां पे क्या ड्रॉप मार सकते थे, वहां प्लेसिंग करना जरूरी था, ये फीडबैक कोच का बहुत जरूरी है। प्लेयर की एक्यूरेसी, जब स्मैश मारा तो राइट साइड पर था मगर पाँव शायद लेट चल रहा है, शायद रिएक्शन टाइम जब स्मैश आए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट और लेफ्ट फुट का कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्या आपके हील्स जमीन पर हैं, क्या आपके टोज जमीन पर हैं, क्या आपके बॉडी बैलेंस और आपका जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सही है। ओपोनेंट का डेटा बहुत जरूरी है। देखिए ये प्लेयर आज फॉर्म में नहीं है, ये जो है कमजोर कड़ी है ओपोनेंट टीम के अंदर, उसको एक्सप्लॉइट कीजिए, प्लेयर को उसके ऊपर टारगेट करना जरूरी है। हर बारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को हर मैच, हर गेम, हर पॉइंट के बाद कोच और प्लेयर्स मेंटली एनालाइज कर रहे हैं। टैक्टिकल रिव्यू, क्या मेरी रणनीति ठीक है, क्या हमने जो शुरुआत की थी एग्रेसिव अटैकिंग प्ले, क्या वो सही था, क्या वो उसको फिर से रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमाइजेशन थ्रू फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्री मैच डेटा, पोस्ट मैच डेटा के बीच में कितना है। एवरी गेम के बाद, पहले गेम हम जीत पाए हैं, सेकंड गेम हमने जीतना है, थर्ड गेम तक नौबत नहीं आनी है, ये है प्रेडिक्टिव डेटा। ड्यूरिंग मैच मेरा प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, ओपोनेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या मेरा टैक्टिकल अप्रोच बहुत ठीक है, क्या मेरे प्लेयर्स के पास रिकवरी टाइम है, प्लेयर ज्यादा थक रहा है, मेरे को सब्स्टिट्यूशंस लेने हैं या नहीं। इंजरी मैनेजमेंट, मैंने अपने बेंच प्लेयर को कब आगे लाना है, क्या मेरा मेन प्लेयर को मैं रिस्क में डाल रहा हूँ, क्या वो उसको इंजरी कैरी करके आगे जा रहा है या नहीं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन, प्लेयर्स फॉर्म, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी कैसी है मेरी प्लेयर्स की, क्या वो हर पॉइंट्स में अच्छे तरीके से अनफोर्स्ड एरर्स और फोर्स्ड एरर्स को बैलेंस कर पा रहे हैं। फिक्सचर कैसा है मेरे कंपटीशन के अंदर, क्या मैं नॉकआउट खेल रहा हूँ, क्या मैं लीग ग्राउंड में खेल रहा हूँ, क्या मैं लीग कम नॉकआउट में खेल रहा हूँ, क्या मेरे पॉइंट्स जीतने जरूरी हैं लीग के अंदर, क्या मैं पायदान में नीचे हूँ तो इसके लिए मतलब क्या मैं पहला मैच हार चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को अपनी रणनीति और कोचेस को अपना स्ट्रैटेजी और अपनी एक्सपेक्टेशंस प्लेयर्स के साथ शेयर करने के लिए कि दिस इज अ मस्ट विन मैच, इसमें करो या मरो की स्थिति है, इसमें आपको 100% से भी ज्यादा देना है। क्या आपका ये मैच बहुत आसान है, हम अपने सब मैचेस जीत चुके हैं, हम टेबल टॉप कर रहे हैं, तो आप अपने मेन प्लेयर्स को बिठा देते हैं, आप अपने सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स को चांस देते हैं कि वो मैच एक्सपीरियंस गेन कर पाए। ठीक है, पीरियडाइजेशन और कंपटीशन कैलेंडर में आज क्या है, ये मेरा ऑफ सीजन है, ये मेरा प्री कंपटीशन सीजन है, ये मेरा मेन इवेंट है। स्टूडेंट्स, मेरे प्लेयर्स, आप ये समझिए हमने पूरी मेहनत पूरे साल या पूरे 3 साल या पूरे 4 साल इस एशियन गेम्स के मैच के लिए किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ जीतना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो फीडबैक जो है
अपने प्लेयर्स को बताने के लिए कि हम अपने प्लानिंग के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऑफ सीजन में आपको शायद इजी प्रैक्टिस मैच है, मगर जब आप मेन कंपटीशन में हैं तो आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन, आपकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, इंजरी फ्री रहना, ये बहुत जरूरी है आपके पीरियडाइजेशन गोल्स के हिसाब से। कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, आज की डेट में एक सबसे खतरनाक टूल है जीतने के लिए। कई टीम्स, अब मेजर लीग बेसबॉल की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है कि आपका प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत ही स्टेबल रहे, और इसके लिए आपका प्लेयर्स कैसे जीते हैं, मेजर लीग बेसबॉल, मेजर लीग बास्केटबॉल, कॉलेजिएट गेम्स के अंदर बहुत देखने को मिला है कि मैनेजर्स और कोचेस ने सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के बेस पर अपने मैचेस और टूर्नामेंट और सीजन्स जीते हैं। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मैनेजर्स, आपके कोचेस, आपके स्काउट्स, आपके एजेंट्स, आपके फैंस, और आजकल फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर गैम्बलिंग के लिए भी, जहाँ पे बेटिंग लीगल है, वहां पे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू मिलता है बेटिंग के थ्रू। और अगर गैम्बलिंग हो रहा है और प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं गैम्बलर्स को बेनिफिट देने के लिए, तो वो उसको पकड़ने के लिए भी डेटा एनालिटिक्स बहुत बहुत कारगर है। इसके साथ हमने डेटा एनालिटिक्स जरूर खत्म किया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए वो है स्काउटिंग। क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पूरी टीम के अंदर कौन है जो जीत दिलाता है? क्या मैनेजमेंट है, क्या कोच है, या टीम या प्लेयर है कोई? सवाल का जवाब ये है कि इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। प्लेयर्स बिना कोच के, बिना डायरेक्शन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर एक मैनेजमेंट है जो कोच को और प्लेयर्स को डेवलप कर पाए तो वो बहुत जरूरी है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। प्लेयर्स आर द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंपोनेंट्स ऑफ द टीम। फैंस जानते हैं, बाहर के लोग आपको जानते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप सही प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें और अपनी टीम में रिक्रूट करें। वो जो रिक्रूट करते हैं उन्हें स्काउट कहते हैं। जो प्लेयर्स डिस्कवर्ड टैलेंट नहीं है, बाहर से टैलेंट लेके आ रहे हैं, उसको कहते हैं स्काउट। कोचेस हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हो सकते हैं जो कम से कम यूनिवर्सिटी या सीनियर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, उससे कम जूनियर लेवल पे जो बंदा खेला हो 1 या 2 मैच, वो स्काउट नहीं बन सकता है। अच्छे लेवल पे खेला हुआ, मंझा हुआ खिलाड़ी ही स्काउट बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर, कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, टीम के ओनर्स और एकेडमीज के ओनर्स भी आपको स्काउटिंग में हेल्प कर सकते हैं। स्काउट्स कैसे काम करते हैं? प्रो स्काउट्स कॉन्ट्रैक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल टीम्स उनको पैसा देके उनकी सर्विसेज को लेते हैं। जरूरी होता है कि वो सेपक टाकरों के जितने मैचेस हैं उनको देखें, उनको जानें, प्लेयर्स का डेटा बिल्ड करें। प्लेयर डेटा इंटेलिजेंस, कौन सा प्लेयर कहाँ, कौन सी एज ग्रुप पे है, ये उसको पता होना चाहिए डेमोग्राफी के हिसाब से, और वो ऑपरेट कर सकता है लोकली, रीजनली, नेशनली या इंटरनेशनली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बारी ऐसे भी स्काउट्स होते हैं जो नेशनल टीम्स को हेल्प करते हैं, कि कहते हैं कि देखिए वो प्लेयर उस कंट्री में अच्छा है, वो अपनी कंट्री के डायनामिक्स के साथ खुश नहीं है, क्या उसके हम अपनी कंट्री लाके सिटीजनशिप ले सकते हैं? क्या उसको इंडियन बना के क्या हमारी टीम और बेटर कर सकती है? ये स्काउट भी करना। Scout works. This is what we were working on with coaches, club officials, parents, guardians, school teachers, agents. Abhi, when you look at the Super Series, जब pro teams आती हैं, तो अलग टीम्स जो आती हैं वहाँ पे एजेंट्स भी मिल सकते हैं आपको, जो बोलेंगे कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी डिसाइडिंग, मैं अपने प्लेयर का एजेंट हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इतने पैसे में आऊँगा, मेरा प्लेयर इतने पैसों पे अवेलेबल है, उसको दूसरे क्लब में इतना पैसा मिल रहा है, अब नए टीम में आने के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए। These are expectations जहाँ पे एजेंट्स आएंगे, उसमें लीगल बाउंडेशंस होती हैं। जो प्लेयर एजेंट्स के अंडर नहीं है, यूजुअली वो प्लेयर्स को कहते हैं फ्री एजेंट्स। टेक्निकल टर्म है, इंटरनेशनल इन टर्म्स ऑफ लीगल बाउंडिंग। फ्री एजेंट प्लेयर्स सस्ते होते हैं, क्योंकि जब एजेंट्स वाला प्लेयर आता है, एजेंट्स का कमीशन होता है, एजेंट्स का फी होता है, एजेंट्स का
सैलरी होता है, ये सब जाता है फ्रॉम द प्लेयर एंड फ्रॉम द फेडरेशन. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लेयर्स को यंग ढूंढिए. सो दैट्स द रीजन व्हाई ग्रास रूट डेवलपमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट द ग्रास रूट्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस एजेस में आपको प्लेयर मिले, तो इनके लिए आपको एजेंट फीस या एजेंट ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर फीस देने की जरूरत नहीं है. मगर ये याद रखिए, फॉर प्लेयर्स हु आर अंडर 18, लीगली बात करें तो दे आर माइनर्स. जब प्लेयर्स को आप रिक्रूट करते हैं एक एजेंसी के अंदर, जब आपके क्लब के अंदर, एक एकेडमी के अंदर, तो दे आर माइनर्स, सो दे आर नॉट लीगली able or capable to sign a contract with an academy. तो उसमें बहुत जरूरी है कि the players parents are taken into confidence. उसके अंदर हम आपको बता दें, टैलेंट इवैल्यूएटर्स होना बहुत जरूरी है. अगर आप डेवलप कंट्रीज यूरोप में बात करें, अगर आप अच्छे एडवांस स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, जहाँ पे आपका क्रिकेट है, जहाँ पे इंडिया के अंदर या फुटबॉल है, कबड्डी है, अब सुपर सीरीज लीग है आपका सेपेक टाकरा के अंदर, उसके अंदर बहुत बहुत बढ़िया सैलरीज होती हैं स्काउट्स की, जो आपको अच्छे प्लेयर्स दे सकता है. तो उसके अंदर वो टैलेंट इवैल्यूएटर्स होना बहुत जरूरी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस टैलेंट इवैल्यूएटर्स, कि कौन सा प्लेयर मैच सिचुएशंस, प्रेशर सिचुएशंस, कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको रिक्रूट करने के बाद विनिंग विल ऑलमोस्ट बी श्योर. फैन इन कितने प्लेयर्स लेके आएगा, एक्सटेंसिवली उसको ट्रैवल करना पता होना चाहिए. एबिलिटी टू डिटरमिन वेदर द स्किल सेट्स आर राइट फॉर दैट टीम जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. जहां तक रोनाल्डो की बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसका एग्जांपल काफी दिया जाता है जहां तक हम समझें. प्लेयर स्काउटिंग, प्लेयर्स को इंटर क्लब ट्रांसफर्स, जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में एलेक्स फर्गसन के साथ खेल रहा था, और उसके बाद जब वो रियल मैड्रिड गया था, उसका बेस प्राइस करीब $80 मिलियन था. $80 मिलियन जब रियल मैड्रिड खर्च करता है एक प्लेयर के ऊपर, वो उसके पास कुछ जेब में नहीं होते कि वो निकाल के दे पाए. What happens is the fact that बैंक लोन्स लिए जाते हैं, अलग अलग एजेंसी से आप लोन्स लेते हैं $80 मिलियन. हम कहते हैं कि आप हमें दे दीजिए, इतने महीने बाद इतने इंटरेस्ट पे हम आपको दे देंगे. स्काउट्स का बहुत जरूरी है कि जब ये प्लेयर्स आते हैं, जितने फैंस इंग्लैंड में पूरे वर्ल्ड में रोनाल्डो के फैंस थे, उन्होंने जब देखा कि रियल मैड्रिड से रोनाल्डो, रियल मैड्रिड जा रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड जा रहा है, तो वो डेट मेरा कंपनी या रियल मैड्रिड को $80 मिलियन में देना है. आप सोचिए कितना टाइम लगा होगा $80 मिलियन को वापस बनाने के लिए. ये है काम प्रेडिक्टिव एनालिसिस का, ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल प्रेडिक्टिव एनालिसिस का फायदा, कि सिर्फ एक हफ्ते में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड से प्लेन पे चढ़ के जब तक मैड्रिड में लैंड किया, रियल मैड्रिड में $80 मिलियन वापस बना चुका था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फैंस का एंगेज करना, कौन सा प्लेयर के पास कितना स्टार पावर है, ये डेटा एनालिटिक्स और स्काउटिंग की ही बदौलत है. कि एक हफ्ता नहीं हुआ था कि रियल मैड्रिड ने पैसे स्पेंड किए थे लोन लेके. रियल मैड्रिड में, मैड्रिड सिटी स्पेन के अंदर है, रोनाल्डो इंग्लैंड से जब तक मैड्रिड पहुंचा, फ्लाइट से उतरा भी नहीं है, रियल मैड्रिड ने इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू $80 मिलियन बना लिए रोनाल्डो के नाम से. इसके बाद जितना पैसा भी रियल मैड्रिड बनाता है या बनाता था, वो सब प्रॉफिट है. आप अगर 10 दिन लेट हो गए $80 मिलियन के लिए, 1% इंटरेस्ट, सोचिए कितना ज्यादा है. तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है, डेटा माइनिंग है, और बाद में प्रिस्क्रिप्शन एनालिटिक्स है, इसके जरिए से स्काउट्स ने, कोचेस ने, मैनेजमेंट ने मिलके $80 मिलियन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर रोनाल्डो के नाम से बना लिया था. वो कैसे था वो आपको शायद किसी और सेशन में बताऊंगा, मगर अभी आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेयर को आप लेके आ रहे हो और उसका इम्पैक्ट टीम के ऊपर जीतने के ऊपर
रेवेन्यूज के ऊपर, फैंस मैनेजमेंट के ऊपर। कई बारी तो ऐसे प्लेयर्स पहुंच जाते हैं आपके टीम्स के अंदर जिनका रिस्पेक्ट इतना ज्यादा होता है, जिनका इमेज ऐसा होता है कि रेफरीज जानते हैं कि ये प्लेयर गलत नहीं खेलता है, ये प्लेयर एक ईमानदार प्लेयर है। क्या मैं ऐसा प्लेयर लेके आ रहा हूँ कि अगर वो कॉल दे, अगर वो रेफरीज उसको पसंद करते हैं, क्या दूसरे टीम्स उसके नाम से डर जाते हैं? ये इम्पैक्ट एक प्लेयर का बहुत जरूरी है जब आप रिक्रूट करें स्टार प्लेयर्स को। जूनियर प्लेयर्स में आपने ये प्लेयर्स को बिल्ड करके बनाना है। क्या उनके पास वो स्किल सेट जरूरी है? अब देखिए कि स्काउट्स कौन से प्लेयर्स देखते हैं। 3 तरीके के स्काउट्स होते हैं। पहला है जो रॉ टैलेंट देखता है। रॉ टैलेंट में कि यंग प्लेयर जिनमें टैलेंट है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनको ट्रेन करके आगे ले जाने की क्षमता है, क्या उनमें वो एम्बिशन है, क्या उनमें वो डिजायर है, क्या उनमें वो हार्ड वर्किंग एबिलिटी है, क्या उनमें वो डिसिप्लिन है, क्या उनमें ईगो है, क्या वो अपने आप को स्टार बनने के बाद या स्टार मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद दूसरे प्लेयर से अपने आप को ज्यादा मानता है। ये सब चीजें जज करने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्काउट का। तो प्लेयर्स ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है जब वो रॉ टैलेंट को आइडेंटिफाई करे एक स्काउट के लिए। सो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। आप याद रखिए टैलेंट, जब टैलेंट को बनाते वक्त एक चीज, कोचेस, जितने भी कोचेस मेरे को सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम लोग जो मेरे को सुन रहे हैं वो कोचेस हैं, ये याद रखिए टिल द एज ऑफ 9 and 10 आप जब भी प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। लड़के लड़कियां कोशिश कीजिए साथ में खेलें ताकि स्किल सेट्स, नर्वल कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर स्किल सेट्स, मसल मेमोरी, मसल एम्पलीट्यूड, ट्रेनिंग स्पीड, ट्रेनिंग एक्यूरेसी लड़की के और लड़के के बराबर के बने, तभी वो आपके प्लेयर एक एसेट बन पाएगा। दूसरा सेट ऑफ स्काउट्स वो होते हैं जो एस्टैब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड टैलेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रोनाल्डो को लेके आए थे। अगर आपको दूसरे टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो आपकी कंट्री में आना चाहता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो हैं जो स्काउट्स जो ट्रेडिंग के अंदर, एजेंसीज के अंदर, फ्री एजेंसीज या पेड एजेंसीज या प्रॉफिट के लिए प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो पहले ही आइडेंटिफाइड प्लेयर होगा। नंबर 1 आपको कह देता हूँ, लीगल पे हम वापस आते हैं। कोचेस को बहुत जरूरी है कि उनको लीगैलिटी समझना चाहिए। जब एक प्लेयर किसी और कंट्री से हमारे कंट्री में आता है तो वो कौन से वीजा पे आएगा? खेलने के लिए जब आता है वो कौन से वीजा पे आएगा? जब सिटीजनशिप चेंज करता है तब कैसे आएगा? दूसरे कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। क्या एक इंडियन प्लेयर ओरिजिन का बाहर खेल रहा है, वो वापस आके इंडिया के लिए खेलना चाहता है? बेशक वो इंडियन है, उसके पेरेंट्स, उसके एंसेस्ट्री इंडियन है, उसके परदादा इंडियन है, एक ऐसा इंडियन है जो बाहर पैदा हुआ है, मगर उसकी सिटीजनशिप चाहे सिंगापुर की हो सकती है, इंडोनेशिया की हो सकती है, भूटान की हो सकती है, नेपाल की हो सकती है, मलेशिया की हो सकती है। काफी इंडियंस हैं इस डेमोग्राफी के अंदर, मगर क्या वो इंडिया के लिए खेलना आ सकता है? वो खेल सकता है? नहीं खेल सकता है। लीगल इश्यूज हैं उसके लिए। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूअल सिटीजनशिप। इसके लिए स्काउटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जो लीगैलिटीज हैं उसकी तैयारी अलग होती है। कौन से वीजा में आएगा? हाईली स्किल्ड वीजा में आएगा, लोकल स्किल्ड वीजा में आएगा, इमिग्रेंट वीजा पे आएगा, प्रोफेशनल वीजा पे आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगैलिटीज हैं जो आपको पता होना चाहिए जब आप रिकॉग्नाइज टैलेंट को देख सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्काउट जो होता है वो होता है कि ऑपोजिशन का स्काउट। वो कोई प्लेयर लेके नहीं आ रहा है, वो ऑपोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका स्पाई है, आपका जासूस है जो ओपोनेंट को भांपने के लिए गया है। ये ओपोनेंट की रणनीति क्या है, ओपोनेंट का मेन प्लेयर कौन है, ओपोनेंट का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, ओपोनेंट का ऑर्डर ऑफ प्ले क्या है, ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, वो रिकॉर्ड करे, वो अंडरस्टैंड करे और वापस आके आपको बताए। ठीक है, वो एनालाइज करता है ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। और ये देख सकते हैं आप, वीडियोग्राफी में होती है कि आप उनका वीडियोस बना देते हैं, वापस भेजते हैं और डेटा माइन करके आप बताते हैं कि ये प्लेयर है, इसका ये वीकनेस है, इसका बिगेस्ट
प्लेयर ये है, अगर इसको आप खेलने ना दो तो वो टीम खत्म है। ये बहुत जरूरी है इन ऑपोजिशन स्काउट्स जो हर टीम्स के पास होनी चाहिए। अब जैसे आप अगर आप मलेशिया पे जा रहे हैं, अगर आप थाईलैंड में जा रहे हो, आप उनके मेन प्लेयर्स को जान के पहचानते हो, यार ये करता है, इसको अगर सर्विस मिल गई 90% पॉइंट तो ये लेके जाएगा। इसीलिए भी आप देखिए जहाँ पे प्लेयर्स बनते हैं वहाँ पे फेडरेशन ने भी ये रूल निकाला था। पहले एक जमाना था जब हम लोग खेला करते थे, we used to play, you know, the game used to be played on the rules that जो पॉइंट जीतता है वही सर्विस करता है। Over the years, I believe around 10 years back, फेडरेशन ने ये रूल चेंज कर दिया। Federations, the international federation has now changed the style of play to give equal opportunity to all. पहले होता था जिसका ताइकोंग इतना खतरनाक होता था वो सर्विस कर करके सब पॉइंट जीत जाते थे और टूर्नामेंट खत्म हो जाता था, तो सामने वाले को खेलने का मौका ही नहीं मिला। मगर फेडरेशन ने ये अंडरस्टैंड किया, रियलाइज किया और फिर किया कि हर 2 पॉइंट बाद, चाहे आप पॉइंट जीतें या पॉइंट हारें, हर 2 पॉइंट बाद सर्विस चेंज होगी। इसलिए क्या होता था, गेम बनता था, गेम खेलने को मिलता था। स्पॉन्सर को 1 सेकंड में 1 पॉइंट दिखता था, सर्विस क्या पॉइंट जीता, सर्विस क्या पॉइंट जीता, सर्विस क्या पॉइंट जीता, 15 सर्विस 20 सर्विस, गेम खत्म। ऑपोजिशन को खेलने का मौका ही नहीं मिला। स्पॉन्सर्स को अच्छा ही नहीं लगता ये सब चीजें। स्पॉन्सर्स को चाहिए एंगेजमेंट, फाइट, ड्रामा, एक्साइटमेंट। तो इसके लिए फेडरेशन ने रियलाइज किया और प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया और इक्वल ग्राउंड दिया कि हर 2 पॉइंट बाद जब सर्विस चेंज होगा तो गेम देखने को मिलेगा, स्किल्स देखने को मिलेंगे, एबिलिटीज देखने को मिलेंगे। इसलिए डेटा माइनिंग जो हमने शुरू में डेटा एनालिटिक्स किया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्काउट, कहाँ कहाँ आपको प्लेयर मिलेगा आपको पता होना चाहिए। स्काउट्स हैव टू नो द टैलेंट, डेटाबेस बनाना चाहिए कि यहाँ पे ये प्लेयर है जो 4 साल का है, जिसमें 5 साल बाद या 4 साल बाद एबिलिटीज हैं कि वो एक अच्छा स्टार प्लेयर बन पाए, ओपोनेंट को बीट करने की उसकी क्षमता है या नहीं। ये प्लेयर्स कहाँ मिलेंगे, कौन कौन से टूर्नामेंट्स में, स्कूल के टूर्नामेंट्स में, फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ बॉल स्किल्स आपको देखने को मिले। जिसकी बॉल स्किल्स अच्छी हैं उसको आप ला सकते हो, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। बात करो जूनियर प्लेयर्स के लिए, बेटा देखिए अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपकी बॉल स्किल्स अच्छी हैं, आप सेपक टकरा भी खेल सकते हैं। काफी प्लेयर्स ऐसे हैं, काफी प्लेयर्स सेपक टकरा से भी उठाए जाते हैं फुटबॉल के लिए कि आपके बॉल स्किल्स अच्छे हैं, आप फुटबॉल में आ जाइए। तो वो एक रिवर्स प्रोसेस भी आप स्काउटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लोकल क्लब्स में आप जाइए, जो मैचेस चल रहे हैं, फ्रेंडली मैचेस के अंदर, रेफरेंस, सोशल मीडिया। किसी ने फेसबुक में चलाया अपना वीडियो कि एक छोटा बच्चा अच्छा जगल कर रहा है, स्मैशिंग अच्छा कर रहा है, हेडवर्क उसका अच्छा है, बॉल कंट्रोल अच्छा है, ढूंढ निकालना है उस प्लेयर को। तब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग टीम, कंप्लीट टीम बन सकती है। स्किल्स फॉर अ स्काउट बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्किल्स फॉर अ कोच भी है। जितने कोचेस हैं ये दोनों पॉइंट्स जरूर देखिए, जिन्हें स्काउट बनना है उनके लिए भी और जिन्हें कोचेस बनना है उनके लिए भी। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बात करने की एबिलिटी, सामने वाले को कन्विंस करने की एबिलिटी, उसको समझने की एबिलिटी, अपनी जो बात है समझाने की एबिलिटी, विच इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एक टीम को। इंटरपर्सनल स्किल्स, क्या आप रिलायबल इंसान हैं, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, लोग आपसे मिलके बात करने में अच्छा करते हैं, आपकी नेटवर्क कैसी है, आपको लोग सेपक टाकरा की इंडस्ट्री में स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में पहचानते हैं, आपका रुतबा है, लोग आप अलग दूसरे कोचेस आपसे जुड़ते हैं, आपके साथ प्लेयर्स शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ डेटा शेयर करना चाहते हैं। रिसर्चिंग स्किल्स, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च करने के लिए। अगर आप अच्छा कोच बनना चाहते हैं, अच्छा स्काउट बनना चाहते हैं कि ये प्लेयर इस एज में उसकी एबिलिटी ये है, उसका मसल पावर ये है, उसके अंदर वाइट फाइबर्स हैं या रेड फाइबर्स हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, उसकी मसल एम्पलीट्यूड कितनी है, उसके पेरेंट्स ऐसे हैं तो क्या पता ये प्लेयर्स वैसा है। प्लेयर्स अगर उनके बच्चे खेलते हैं तो अधिकतर होता है कि प्लेयर्स आर मेड, प्लेयर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। अगर जेनेटिक ट्रेट्स हैं प्लेयर्स के अंदर
तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आपका रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, स्काउट कर पाए टैलेंट को, और प्लेयर्स को रिक्रूट कर पाए। निगोशिएशन स्किल्स, उसको निगोशिएट करना कि वो स्टेट छोड़ के या वो क्लब छोड़ के या वो एकेडमी छोड़ के, वो स्कूल या वो कॉलेज छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ये निगोशिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी स्किल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेल्स भेजो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बताओ कि देखिए सर्विसेज कोड एसएसबी में ये रिक्रूटमेंट के लिए ये प्लेयर अच्छा है सर, देखिए एसएसबी है जो अच्छा प्लेयर है, आईटीबीपी है जो अच्छा प्लेयर है, वो ढूंढता है, आपके लिए ऑप्शंस हैं। उनके लिए ये मेल्स, ये फीडबैक बहुत जरूरी है। रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि आप जब प्लेयर्स को दे रहे हो आपको रिपोर्ट लिखना चाहिए कि वो किस तरीके से कन्विंस्ड है कि ये एक अच्छा प्लेयर है। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि एक ही प्लेयर पे एक ही काम पे ज्यादा टाइम ना लगाए, मल्टीटास्क कर पाए, प्रायोरिटाइज कर पाए और अपने काम को अच्छी तरीके से टाइम के हिसाब से खत्म कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्किल्स हैं एक कोच के अंदर और एक स्काउट के अंदर। एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ द गेम, ऑनेस्टी हो, एक प्लेयर, एक कोच, एक पेरेंट, एक स्कूल, एक कॉलेज आपको ट्रस्ट कर पाए क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आप इंटेग्रिटी हो, आपका प्रोफेशनल इमेज हो कि मैं जिस प्लेयर को देख रहा हूँ मेरे को उसी से मतलब है, बाकी मेरे को किसी से मतलब नहीं है। ये एटीट्यूड अगर आपका पता लग जाए, जजमेंट आपकी अच्छी हो, निगोशिएशन हो, आप प्रेजेंटेबल हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो मार्केट के अंदर, जब तक ये एबिलिटीज नहीं हो आप अच्छे स्काउट और अच्छे कोच नहीं बन सकते। स्काउट्स के अंदर स्काउट्स क्या क्या देखते हैं प्लेयर्स के अंदर, ये एक बहुत है। ये इसके अगर आप नोट्स ले सकें तो प्लीज टेक नोट्स। अगर आप पेपर और पेन निकालें और इसको लिखें, या आपको कैमरा है इसका पिक्चर जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोच या स्काउट आपके अंदर क्या देख रहा है। टेक्निकल एबिलिटी, क्या आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपका अवेयरनेस, आप ग्राउंड पे कहाँ खड़े होते हो, आपको कब कौन सा स्किल करना है, आप अपने प्लेयर के साथ सपोर्टिंग रोल, कॉम्प्लीमेंट्री रोल कैसे दे पाते हो, आपका शूटिंग या आपका स्मैशिंग स्किल कैसा है, आपका कमिटमेंट कितना है गेम के अंदर, आपका एटीट्यूड कितना कैसा है, क्या आप सेल्फिश हो, क्या आप बॉल सिर्फ अपने पास रखते हो किसी और को देते नहीं हो, तो वो बहुत जरूरी है। क्या आप डेयरिंग हो, आप डाइव मार सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आपका रिस्क का जो जजमेंट है वो सही है या नहीं, क्या आपने रिस्क जो लिया उसको आप निभा सकते हो या नहीं, या बाकी प्लेयर्स को भी हरा दिया आपने उस चक्कर में रिस्क जो आपने लिया। टचेस कैसे हैं आपके, फर्स्ट टच कैसा है, फर्स्ट टच बॉल कंट्रोल कैसा है, आपका विजन कैसा है गेम के लिए कि मैं अपने गेम को कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, कि मैं अपनी टीम को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, गेम प्लान कैसे बना सकता हूँ, क्या मेरे में स्टैमिना है, मैं शुरू में खेलता हूँ और थक जाता हूँ, क्या मेरे में पैशन है कि मैं सैक्रिफाइसेस करूँ और इस गेम को खेलूं, क्या मेरे में एंटिसिपेशन एबिलिटी है, एंटिसिपेट मतलब कि तू जो होने वाला है उसको भांप लेना, क्या मेरे में एबिलिटी है, क्या मेरे पास पेस है, क्या मैं स्पीड से काम कर सकता हूँ। स्पीड और पेस अलग चीज है, स्पीड एक मूवमेंट है, पेस है कि मैं पूरे गेम में अपनी स्पीड को कितनी देर पे कितने कितने रेट पे रख सकता हूँ, मैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज माय पेस। तो अगर मेरे पास पावर नहीं है, अगर मेरे पास एबिलिटी नहीं है, अगर मैं थक जाता हूँ तो मैं अपना पेस नहीं रख सकता। 4 सेट में तेज खेलूं, 4 पॉइंट में तेज खेलूं और उसके बाद मैं थक जाऊं, कोई फायदा नहीं है ऐसे प्लेयर का। पासिंग एबिलिटी, मैं किसको पास दे रहा हूँ, क्या मेरे पास वो कंट्रोल है कि मैं अपने स्मैशर या अपने प्लेयर के लिए बॉल बना पाऊँ, दोनों पाँव मेरे चलते हैं या नहीं, क्या मेरा थाई कंट्रोल अच्छा है, क्या मेरा चेस्ट कंट्रोल अच्छा है, क्या मैं हेड पे कंट्रोल कर सकता हूँ। इंटेलिजेंस, कौन सा स्किल कब कहाँ कैसे लगाना है, कब मैंने ओपोनेंट को के ऊपर चढ़ना है, कब मैंने अपनी टीम के साथ शांत रहना है। इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी वाइज डिसीजन दैट यू नीड टू टेक। इंटेलिजेंस इज आल्सो अबाउट taking मतलब talking, looking at your coach, telling your players जब वो ज्यादा इमोशनल हो रहा हो, जब ज्यादा गुस्से में आ रहा हो, तो उसको कैसे शांत करा जाए,
कि तू कितना इम्पोर्टेंट है हमारी टीम के लिए। हम लोग इकट्ठे जब तक काम नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। ये इंटेलिजेंस है। और विच डिसीजन, मैं स्मैश मारूं तो लंबा स्मैश मारूं, साइड लाइन में मारूं, बॉडी स्मैश मारूं, ऑप्शंस हैं। स्पोर्ट्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मगर जो प्लेयर आगे बढ़ेगा वो सही चॉइस ले पाता है। पचासों ऑप्शन के बीच में जब आप सही ऑप्शन लेते हैं उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। कितना शातिर प्लेयर है वो, कंट्रोल कैसा है, स्टैमिना कैसा है, वर्क रेट कैसा है, आपकी ड्रिबलिंग एबिलिटी, आपका जगलिंग एबिलिटी कैसा है, आप ड्रिबल करते हो इंडिविजुअली, कितने टचेस आप बॉल के साथ बनाते हो और अपने साथ बनाते हो। ये सब डिफरेंट स्किल सेट्स हैं कि एक बार आपने बॉल पे मारा, दो बारी जगल किया, एक पाँव पे जगल किया, दो पाँव पे जगल किया, फिर आपने बॉल पे मारा, फिर 4 बार जगल किया, एक पाँव पे या 2 पाँव पे, फिर आपने चेस्ट पे लिया, आपने हेड पे लिया। ये अलग अलग आपका प्लेयर ओरिएंटेशन है। आपका ऑन कोर्ट मूवमेंट कितना अच्छा है, आपके अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है। आपकी डिफेंडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप स्मैश मारे तो कितनी जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं, कितनी जल्दी स्मैश को काउंटर कर पाते हैं, कितनी जल्दी ब्लॉक कर पाते हैं, कितनी जल्दी आप उसका एंगल बंद कर देते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। लीडरशिप क्या आपके अंदर है या नहीं, आपकी फिजिक, अगर आप छोटे कद के हैं और आप एक टाइकॉन है तो आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। लास्ट 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक कोच के, एक प्लेयर को, एक सिलेक्शन को। क्या उसमें सीखने की इच्छा है। मैं स्टेट लेवल पे जीत गया, मैं सबको जानता हूँ, कोच मेरे को क्या बताएगा। अगर ये एटीट्यूड जिसके कहते हैं ऑर्डर खड़े हो गए, वो प्लेयर आगे नहीं बढ़ सकता है, वो खुद भी डूबेगा और को भी डूबेगा। ऐसे प्लेयर्स को अगर आप काउंसिल करते हैं तो ठीक, अगर नहीं काउंसिल कर रहे हैं उनको टीम से बाहर रखना बहुत जरूरी है। डिजायर टू ग्रो, डिजायर टू ग्रो वो है कि जो बोलेगी मैंने सर नंबर 1 बनना है, चाहे कुछ हो, आप मेरे को ट्रेनिंग दो, आप मेरे को थकाओ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hello, am I audible? I think there was a little bit of problem. There are some of these technological problems. क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? कोई मेरे को thumbs up दिखा सकता है? Can anyone show me a thumbs up if they are Yes, listening? we can hear you. Yeah. Can I see a thumbs up? Yeah. Yeah. I have got someone's photograph on my screen. Monica, Is it okay now?
Hello. Yes, Vijay. Right. I'm so sorry. This seems to be a technical glitch at my end. There is a lot of fluctuations that I have to bear with. I'm so sorry for this. Let me get on right back to what I'm doing. Can you all hear me and see me? Yeah, we can hear you and we can see you. Thank you. Thank you so very much. Now we have discussed desire to grow, desire to learn. Two very, very important. आपके पास बाकी सब qualities हैं, मगर आप सीखना नहीं चाहते. अगर आप humble नहीं हो अपने coach के साथ. These are qualities which will not take the player ahead. आप आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे. एक stagnation आ जाएगा और फिर बाद में players भी आपको आगे देखेंगे नहीं. Types of scouts जो हैं, ये हमारे कोचेस को बहुत जरूरी में ध्यान रखना चाहिए. एक टाइप ऑफ स्काउट होता है जो अपना सिलेक्शन करता है सिर्फ एक प्लान के हिसाब से कि मेरे को ये वाला प्लेयर चाहिए, मेरे को ये वाला प्लेयर चाहिए, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए. वो एक पोर काइंड ऑफ स्काउट है, एक पोर टाइप ऑफ कोच है. एक पिकर होता है जो एक प्लेयर का वीकनेस देखता है कि उसमें ये कमियां हैं. स्ट्रेंथ्स नहीं देखता, वो ज्यादा वीकनेस देखता है कि मैं इसके साथ नहीं काम कर सकता, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये ज्यादा बोलता है, ये प्रैक्टिस के बाद बैठा रहता है, जो कहता हूँ उसको ज्यादा समझ नहीं आता है. अच्छा कोच वो है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जो इवैल्यूएट करे हमारे प्लेयर को. SWOT एनालिसिस याद रखिए, SWOT, SWOT एनालिसिस. मेरे प्लेयर, हर प्लेयर का स्ट्रेंथ कितना है, उसकी वीकनेस कितनी है, मैंने उसको कितनी अपॉर्चुनिटी दी है और मैंने उसके अगेंस्ट कितना कंपटीशन है. ये 4 चीजें मैंने भांपनी है. और अगर मैं सिर्फ वीकनेस ही देखता रहा कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है, इसमें ये नहीं है, अरे ये स्मैश मारता नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये ज्यादा मेहनत नहीं करता है, ये सोचता रहा कि मैं पिकर बन जाऊंगा, मेरी टीम आगे नहीं बढ़ेगी, मैं काफी टैलेंट खराब कर रहा हूँ. स्काउट ऐसा है जो सिर्फ टैलेंट सिलेक्ट करता है, कोच ऐसा है जो टैलेंट डेवलप करता है. स्काउट वीकनेस देख सकता है, कोच टोटल प्लेयर, टोटल परफॉर्मेंस को देखता है और टोटल परफॉर्मेंस को लेके आगे बढ़ाएगा. प्रोजेक्टर वो है जो डिटरमिन कर पाता है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद मैं इस प्लेयर को कहां तक पहुंचा सकता हूं. मेरे पास मेरा कोच ऐसा है, मेरे पास मैं उस प्लेयर के साथ लगूंगा, मैं इस प्लेयर को डेवलप करूंगा. और ये एक रिनाउंड फैक्ट है जितने कोचिंग और स्काउटिंग के अंदर, कि सिर्फ 5% ऑफ जितने स्काउट्स होते हैं और जितने कोचेस हैं वो पोर कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. और जितने मेरे पास पिकर्स हैं वो भी 5% में आते हैं. 90% और 85% of the people work in the performance oriented zone और 5% हैं जो प्रोजेक्टर्स हैं. और अगर आपको हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स, एलीट प्लेयर्स बनाने हैं तो आपके पास वो कोचेस और वो स्काउट्स होने चाहिए जो प्लेयर को प्रेडिक्ट कर पाए. एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर से वापस फुटबॉल में जा रहा हूँ क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है. आपके पास लियोनेल मेसी है. जब बार्सिलोना का स्काउट को देखने आया था अर्जेंटीना में, बार्सिलोना स्पेन में है, यूरोप के अंदर है, और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका है, वहां से वापस आया, वहां से आया हुआ है और अर्जेंटीना में ये प्लेयर देखा है. तो फिर एक नॉर्मल सा प्लेयर था जिसमें जो गोल भी मारता था और बीमार प्लेयर था, उसके फेफड़ों में दिक्कत थी. और कोचेस से बात की गई, कोचेस आए स्पेन से इस प्लेयर को देखने के लिए और देखा कि हाँ इस प्लेयर में टैलेंट तो है. और पता लगा कि उसके 6-7 ब्रदर्स और सिस्टर्स भी हैं. तो पेरेंट्स से जब बात की, क्योंकि माइनर था, तो पेरेंट्स को हम अकेले बच्चे को नहीं जाने देंगे. तो बार्सिलोना ने बोला तो आप किस कंडीशन पे आएंगे? कहते हैं हमारे पूरे परिवार को लेके जाएंगे, मदर, फादर, भाई, बहन, सबको. बार्सिलोना वापस गए, बात की, देखा,
फिर डिसीजन लिया है कि हाँ, हम आपका भी एक्सपेंसेस बेयर कर लेंगे, आप आइए, क्योंकि हमें पता है कि 10 साल या 15 साल बाद ये प्लेयर वर्ल्ड का बेस्ट बनेगा और वो बनाने की कैपेबिलिटी हम में है। फिर गए ये लोग वीजास के लिए और जहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, वहां पता लगा कि एक ऐसे फेफड़ों की बीमारी लियोनेल मेसी को है जिसकी वजह से वो आगे खेल नहीं सकता। फिर बार्सिलोना की पूरी स्काउट टीम, कोचिंग टीम, मैनेजमेंट टीम बैठ के देखी कि यार ये प्लेयर तो इतना खतरनाक है, अभी नहीं है, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद या 10 साल की ट्रेनिंग के बाद ऐसा प्लेयर बनेगा, जुझारू प्लेयर बनेगा जो बार्सिलोना को आगे लेके जाएगा। मेडिकल टीम्स के साथ बात की गई, मेडिकल टीम ने बोला कि बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मगर ये ट्रीट हो सकता है। बार्सिलोना ने इस प्लेयर को लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, पूरी फैमिली को लेके गए और पूरी मेहनत की इस एक प्लेयर के ऊपर, और आज की डेट में हम लियोनेल मेसी को वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर में गिनते हैं। ये है प्रोजेक्टर लेवल ऑफ कोच, प्रोजेक्टर लेवल ऑफ स्काउट, जो एक छोटे बच्चे को 4 साल 5 साल की एज में उसके स्किल्स को देख के, उसकी एबिलिटी को देख के ये बता पाए कि 19 साल या 18 साल की उम्र पे वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा या नहीं। ये जरूरी है हर प्लेयर के लिए। प्लेयर तो हर कोच बना सकता है। अगर आपको बढ़िया कोच बनना है, अगर आप ये अपने लिए भी एक डिजायर रखते हैं कि मैंने नेशनल कोच बनना है, मैंने अपना स्टेट का नंबर 1 कोच बनना है, मैंने नेशनल चैंपियनशिप्स में ऑल इंडिया का गोल्ड मेडल का खिताब जीतना है, तो आपको अपने ऊपर भी एक लेवल रखना है कि हम अपने प्लेयर्स को जूनियर से सीनियर लेवल, सीनियर से एलीट प्लेयर और हाई परफॉर्मेंस प्लेयर कैसे बना पाएंगे। याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज ले पाए। तो आपको पता होना चाहिए कि ताइक्वांडो के लिए क्या चाहिए, क्या वो टॉल है, उसका टॉल फिजिकल परफॉर्मेंस है या नहीं। अगर टॉल परफॉर्मेंस है तो एंगल ऑफ डिप उसके अंदर कितना बढ़िया हो पाएगा, लॉन्ग लिम्स, उसके पांव लंबे हैं या नहीं, एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, एजिलिटी है, बैलेंस है, पासिंग विद बोथ फीट है, एबिलिटी टू बी इंटेलिजेंट है, कमांड कर सकता है, लीडरशिप कर सकता है, डिसीजन लेने के लिए अंदर उसके अंदर जिगर है या नहीं, या डरता है वो, तो वो बढ़िया हाई परफॉर्मेंस प्लेयर नहीं बन पाएगा। सेटर कौन बनेगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एबिलिटी हो, हेडिंग की, ब्लॉकिंग एबिलिटी अच्छी हो, पहला टच उसका बढ़िया हो, बॉल कंट्रोल दोनों पांव के अंदर बेहतरीन हो, और एक्सेलेंट रिफ्लेक्सेस हो, क्योंकि स्मैशेस को, सर्विसेज को पिक करने का काम इसका ज्यादा रहेगा। स्मैशर कौन हो सकता है, अगर आपको एलीट प्लेयर ढूंढना है, एक्रोबैटिक हो या नहीं, एजाइल हो या नहीं, हाई वर्क रेट हो या नहीं, हेडिंग एबिलिटी, बॉल कंट्रोल, ब्लॉकिंग, क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट है या नहीं, वोकल है, डिसीजन है, माई बॉल, योर बॉल, टीम को गाइड कर सकता है नहीं, क्योंकि लास्ट टच पूरी टीम के अंदर स्मैशर का होता है, तो पीछे से गाइड करता है। पहला टच बेशक वो लेगा, सेटर दूसरा टच लेता है, तीसरा टच फिर स्मैशर लेता है, तो पीछे से क्या वो वोकल है, कॉल करके टीम को गाइड कर सकता है। टर्न ऑफ पेस, टेक्निकल एबिलिटी, फिनिशिंग, आपकी हेडिंग, आपकी पासिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक स्मैशर में बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिटीज एक यंग प्लेयर में देखें तो आप फिर उसको ग्रूम कर सकते हैं कोच के साथ मिलके कि वो एक हाई परफॉर्मेंस या एलीट प्लेयर बन सकता है या नहीं। और जरूरी है, शुरू में ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गलतियां की जाती हैं कि यंग एज में लड़कों को अलग कर दिया जाता है, लड़कियों को अलग कर दिया जाता है, और फिर क्लेम किया जाता है कि लड़कियां कमजोर हैं या लड़के बढ़िया हैं। बिल्कुल नहीं है, लड़के और लड़कियां एक तरीके के प्लेयर्स हैं। अगर आप ग्रास रूट पे टिल द एज ऑफ 11 लड़के और लड़कियों को इकट्ठा खिलाएंगे तो आपका प्लेयर डेवलपमेंट, प्लेयर आइडेंटिफिकेशन के बाद बहुत अच्छा रहेगा। मैच ड्यूटीज क्या है एक कोच के और कोचेस के साथ जब वो मिलते हैं, कि अपने प्लेयर और अपनी टीम और ओपोनेंट की टीम के ऊपर पूरी रिसर्च करें, पूरा डेटा हो अपने प्लेयर के बारे में, ओपोनेंट के प्लेयर के बारे में, ऑब्जर्व करें अपने टीम को और ओपोनेंट्स को वार्म अप किया,
कौन सा प्लेयर लंगड़ा रहा है, विच प्लेयर इज लिम्पिंग, कौन सा प्लेयर है जिसको ज्यादा स्ट्रेचिंग की जरूरत है, कौन सा प्लेयर है जो टाइम ले रहा है स्ट्रेचिंग के अंदर, कौन सा टीम है जिसका पास्ट परफॉर्मेंस जीतने का है या हारने का है, हार के आगे आई है तो फिर पता है कि ओपोनेंट टीम इस टीम में इस मैच में 100% देगी। नेटवर्क अच्छा हो स्काउट्स के अंदर कि पता लगे कि ये प्लेयर है जिसको मैंने देखना है, इस प्लेयर है जिसके ऊपर मैंने अपनी नजर रखनी है। रिकॉर्ड करे प्लेयर को। काफी बार ऐसा होता है जब अपनी रिटन डॉक्यूमेंट्स नोट्स शायद सामने वाले को बताने के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर अपने टैबलेट से, आजकल आपका एंड्रॉयड फोन है, एप्पल फोन है, उससे आप रिकॉर्ड करें और क्लिपिंग्स ले लें पूरे मैच का, ताकि अब वापस जाएं तो अब अपने कोच को भेजें कि इस प्लेयर को सर आपने देखा है, इसको स्टेट टीम में लेना ठीक नहीं रहेगा, इसको नेशनल टीम में लेना ठीक नहीं रहेगा, इसको नेशनल कैंप में एक एक्स्ट्रा प्लेयर करके क्यों ना दे एक चांस। ये समझाना, ये कन्विंस करना शायद आपके नोट्स में ना हो पाए, मगर शायद आपके वीडियो को देख के जो कोच है, जो सिलेक्टर है, वो समझ पाए, नेशनल कोच समझ पाए, स्टेट टीम कोच समझ पाए कि हाँ ये प्लेयर में एबिलिटी है, क्या पता नेशनल कैंप में एक्स्ट्रा प्लेयर लेके इसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। कंप्लीट मैच रिपोर्ट कोच को, मैनेजर को, एजेंट को अपना बनाना है। ये मेरे मैच में मेरे एक्सपेक्टेशंस थे, इस एक्सपेक्टेशन पे ये प्लेयर खरा उतरा है, इस प्लेयर पे खरा नहीं उतरा है। स्काउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये डूज हैं और लीगली हर इंटरनेशनल फेडरेशन और कोर्ट्स की तरफ से, जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑफ स्पोर्ट है लुइसियाना स्विट्जरलैंड में, उसने ये एक प्री रिक्विजिट रखा है कि हर स्काउट जब जाएगा तो ये स्काउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको फॉलो करने हैं। अगर मेरी टीम का कोच भी जब जा रहा है, इफ आई एम गोइंग एज अ कोच, मेरे को ये चीजें अपने पास रखनी है। आईडी कार्ड, मेरा आइडेंटिटी कार्ड, जो ये प्रमाण पत्र है कि मैं एक स्काउट हूं या मैं कोच हूं। पुलिस क्लियरेंस, अगर ये मैच एक सैंक्शनड मैच है तो लोकल पुलिस को पता होना चाहिए कि आप उस स्टेट से इस स्टेट में क्यों आए हो। आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेयर को, अपने कोच को पहले बताना है कि मैं उस टीम का प्लेयर को देखने आया हूँ। कोच को पता होना चाहिए ताकि वो अपने प्लेयर को बता पाए कि बेटा देखो, तुमको बाहर से नेशनल टीम का कोच देखने आया है, आज अच्छा खेलना, आज आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नेशनल कोच आपको देखने आए हैं, अच्छा खेलना, मैंने आपके लिए बताया। तो प्लेयर भी जान जाता है। तो आपका transparency in your approach. Speak to the player's parent or guardian in case the player is a minor under the age of 18. Never approach the player directly अगर वो player under 18 का हो। एक चीज जरूर है कि अपने प्लेयर को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का प्रॉमिस देना है कि बेटा देख, तेरे पास ये एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का। कभी प्रॉमिस मत करना कि तेरा सिलेक्शन पक्का है, कभी प्रॉमिस मत करना कि तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा, तेरे को अपॉर्चुनिटी इंडियन टीम में या स्टेट टीम में या कॉलेज में या नौकरी में मैं लाऊं। हर वक्त बोले बेटा देख, मैंने तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया है, अब तेरे ऊपर है, परफॉर्म कर, प्रेशर मत ले, सबसे बेस्ट खेल। और कभी एक स्काउट के लिए लीगल बाइंडिंग्स हैं कि खुद प्लेयर के साथ ना खेलें ड्यूरिंग द गेम या ड्यूरिंग द मैच। प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस ग्रुप डायनामिक्स के हिसाब से कंपटीशन एटमॉस्फेयर में या ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर में देना है। आप जब घुस जाते हो तो आप दूसरे प्लेयर से उसको हटा देते हो, विच इज रॉन्ग। वो लीगली बाइंडिंग है कि आप प्लेयर्स के साथ खेलेंगे नहीं। कंक्लूजन, मेरा लास्ट स्लाइड ये है कि स्काउटिंग एक एक्सटेंशन है एक कोच के लिए, एक टीम के लिए, एक फेडरेशन के लिए, एक एसोसिएशन के लिए, प्लेयर आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लेयर सिलेक्शन करने के लिए और प्लेयर रिक्रूट करने के लिए। And last but not least, once again, I would thank our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, our Sports Minister, our Youth Affairs and Sports Ministry Minister, Shri Kiran Rijiju ji, our President of the Sepak Takraw Federation. Without his support and without the able support of the entire Sepak Takraw Federation, our Secretary General,
the Sports Authority of India and the ministry in itself of Youth Affairs and Sport, this would not have been possible. This is the last line मैं हर coaching session में मैं छोड़ता हूँ. हर coaches, हर players, हर administrator को ये एक अपना रखना चाहिए. Respect and discipline. ये coaches को भी रखना है, जिसकी वजह से players भी सीख पाएंगे कि उनकी सहायता से, उनके collaborative and उनके unified approach के बिना कोरोना वायरस के इस जंग के साथ हम नहीं जीत सकते हैं. अपने खुद का दिमाग नहीं रखना है कि क्या सेफ है, क्या सही है, क्या गलत है. वो मानिए जो सरकार ने आपको बताया है. कॉम्पिटेंट लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि स्टे इंडोर्स एंड स्टे सेफ. लास्ट बट नॉट लीस्ट, जय हिंद, जय भारत. Thank you everyone. Thank you very much for your kind attention. I hope you have a great day. God bless each one of you, and may you and your families be safe, be healthy, and continue their prevention mechanism against COVID-19. Thank you very much.